So let's start with the leaves. Leaves arise from terminal growing point of stem, blade of leaf may be attached directly to plant by so this type of leaf is called as sessile leaf, and blade of leaf when attached to plant by stalk called petiole. Leaves can be simple as well as compound type, and they possess stomata and cuticle, and they can also be isobilateral or dorsiventrally flattened. So angiosperms की जो leaves होती हैं, they arise from terminal growing point of stem. Okay, like this is a stem. Okay, तो यहाँ से leaf कर रही है. So this is the terminal growing point of stem. Growing point से leaf निकलती हैं. Blade of leaf may be attached directly to plant. This is the blade of leaf. We call it blade. So जो leaf blade होता है, ये प्लांट से डायरेक्टली भी अटैच हो सकता है, लाइक इन दिस वे. ओके, सो यहाँ पे कुछ भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नहीं है, लीफ डायरेक्टली स्टेम से अटैच्ड है. सो दिस टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज sessile leaf, and another type of leaf is which is attached to plant by stalk called petiole. Okay, like this is, so this is the petiole. So जितनी भी नॉर्मली लीव्स होती हैं, दे ऑल आर लाइक दिस, हैविंग पिटियोल. इस स्टॉक को पिटियोल बोला जाता है, जिससे लीव प्लांट के स्टेम से अटैच्ड होती हैं. लेकिन जो लीव्स डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं स्टेम से, दे आर कॉल्ड एज सेसाइल लीफ. सिंपल भी हो सकती है लीफ और कंपाउंड भी हो सकती हैं. सिंपल लीफ इज लाइक दिस. दिस इज अ सिंपल लीफ विदाउट एनी ब्रांचिंग, एंड कंपाउंड लीव्स आर लाइक दिस. देयर इज वन टर्मिनल लीफ, and यहाँ पे here are the leaflets. So this is a compound type of leaf. Compound simple दोनों हो सकती हैं. Possess stomata and cuticle. Leaves के surface पे stomata present होते हैं. Stomata help in the evaporation of water from the leaves, and cuticle present होती है. Leaf can also be isobilateral and dorsiventrally flattened. आइसोबाइलेटरल लीफ वो होती हैं, लाइक दिस इज अ लीफ. यहाँ पे स्टोमेटा अपर सरफेस पे ज्यादा होते हैं एंड लोअर सरफेस पे कम होते हैं, एंड डॉर्सीवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ में दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं. तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टोमेटा on dorsal and ventral surface of leaf.
तो आइसोबाइलेटरल डॉर्सी-वेंट्रली फ्लैटेंड लीव्स का जो क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑन द बेसिस कि लीव्स के डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन पे कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा हैं। अगर दोनों पे सेम है तो दे आर डॉर्सी-वेंट्रली फ्लैटेंड लीव्स, और अगर एक ऊपर वाले पोर्शन पे ज्यादा नीचे वाले पोर्शन पे कम है तो दे आर कॉल्ड आइसोबाइलेटरल लीव्स. So this was about the leaf. Now we study about the stem. Next is the stem. Stem forms main axis of body, जहाँ से roots, leaves, fruits सब attached होते हैं. Stem possess nodes and internodes. Nodes are the region from where leaf grow, and internode is the part in between two nodes. Now stem can be herbaceous as well as it can be woody. So let's see कि herbaceous stem में क्या होता है and what is there in the woody stem. Herbaceous stem are soft and woody stems are hard. Herbaceous stems जो होते हैं they are small in diameter and woody stems are large in diameter. They are usually green in color and they are brown and dark colored, or we can say they are not green. More appropriately we can say they are not green. Next is they have few number of hard tissues and they have enormous number of hard tissues. And the last difference between them is herbaceous stems के जितने भी plants होते हैं they all are annual plants, and woody stem के plants are all most of the perennial plants. So stem जो होती है it forms the main axis of the body, like यहीं से नीचे रूट्स अटैच्ड होती हैं, यहीं से लीव्स अटैच्ड होती हैं, यहीं से फ्लावर अटैच्ड होते हैं, यहीं से फ्रूट्स अटैच्ड होते हैं. Okay, so this is the stem. As we all know, this reddened portion is the stem. Okay, now what stem possess nodes and internodes. जो एंजियोस्पर्म्स की स्टेम्स होती हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनकी स्टेम के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट थे, बट एंजियोस्पर्म्स के अंदर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्लांट्स हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स इन देयर स्टेम. नोड होता है लाइक यहाँ से लीफ ग्रो करिए तो दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, this portion and this portion, ये blackened portion is node, this black portion is node, and the region, this bluish region between the two black bars, this portion is the internode.
नोड वो पॉइंट होता है जहां से लीफ ग्रो करती है, और दो नोड्स के बीच का पार्ट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। नाउ स्टेम टू टाइप्स की होती है, इट कैन बी आइदर हर्बेशियस और इट कैन बी वुडी। हर्बेशियस जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इट इज प्रेजेंट इन हर्ब्स एंड श्रब्स, और वुडी स्टेम जो होती है वो मोस्टली ट्रीज में प्रेजेंट होती है। सो हर्बेशियस स्टेम सॉफ्ट होती है, वुडी स्टेम हार्ड होती है बिकॉज ये वुड की होती है। दे आर स्मॉल इन डायमीटर एंड दे आर लार्जर इन डायमीटर। लाइक अगर छोटा सा प्लांट है, इफ देयर इज एनी श्रब, तो उसकी जो लीव्स, उसकी जो स्टेम होती है, स्टेम इज यूजुअली ग्रीन इन कलर, तो वो बहुत पतली होती है, तो उसका डायमीटर छोटा होता है। एंड बड़े बड़े ट्रीज विच वी सी, उनकी जो ट्रंक होती है, इट इज दिस मच ब्रॉड, सो दे आर लार्ज इन डायमीटर। हर्बेशियस स्टेम ग्रीन कलर की होती है एंड वुडी स्टेम ग्रीन नहीं होती हैं, या तो ये बहुत ज्यादा ब्राउनिश कलर की होती हैं और आइदर दे आर ब्लैक कलर। हर्बेशियस स्टेम में बहुत कम हार्ड टिश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होती है, लेकिन वुडी स्टेम के अंदर बहुत सारे हार्ड टिश्यूज होते हैं एंड इसी की वजह से वो हार्ड होती है। दे आर द हर्बेशियस प्लांट्स आर द एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स मीन कि वो अपना एक लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट करते हैं। एनुअल इज फॉर वन, तो दे कंप्लीट देयर वन लाइफ साइकिल इन 1 ईयर। एंड पेरेनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 2 साल से ज्यादा तक चलती है। लाइफ साइकिल से मतलब है फ्रूट या फ्लावर्स का प्रोडक्शन तक कंप्लीट होना लाइफ साइकिल का। सो हर्बेशियस प्लांट्स ये काम 1 साल में कर लेते हैं एंड वुडी प्लांट्स को ये काम करने में 2 से ज्यादा साल लग जाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज पेरेनियल प्लांट्स। सो दिस वॉज अबाउट द स्टेम, कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर स्टेम कैसी होती है एंड किस किस टाइप्स की होती है।